Good morning, students of Sarhad. How are you all? Hope so, very well. Enjoying the life in COVID 19, and your teacher has invited me to give you a seminar on exploring chemistry in future. I just want to introduce yourself with the un, ex, world of chemistry with the different branches. First of all, I would like to introduce myself. Myself, Dr. Hina Sanghani from H.V. Desai College, Pune. Today, we are going to uncover the topic that is exploring chemistry in future. See this picture, which is shown in the slide. What does you remind of? It is a big disaster. That is sinking of the Titanic, a very big ship carrying 5,000 passengers, and it has been a big disaster. Now, what is the cause of this sinking of Titanic? It was a question comes to our mind. Then the investigation took place and we got few results out of it. Were many. One of the results shown that why Titanic sank, that is, the steel in the Titanic was analyzed and the chemical components were found to have high levels of both oxygen and sulfur. That is, which implied that the steel was chemical low carbon steel and which was made up of an open hearth process. If one had a powerful microscope to zoom in, then in at the dimension in order or the micrometers, you will see that the steel shows the grain structure which is shown in this figure. This figure gives a very clear picture that the sulfur content in the steel was more. So this was the condition. This high sulfur content disrupt the grain structure of the steel and it leads to the brittleness of the steel. When sulfur combines with the magnesium in the steel, it forms stringers, that is MgS, magnesium sulfide, and there happens the crack. And this was the situation in the hull of the ship. Now, here lies in the hull of the ship, the same situation came, and the ship, when hit to the iceberg, it broke and the ship sank. The huge Titanic sank. Think about the disaster. Next, one more disaster which I would like to explain, that is in June 10, 1990, this incident had happened. The hats off or salute to the pilot who has done the crash landing and the passengers were saved. But in this crash landing, just see the window which was there was broken and the captain pilot was holding the captain and the co-pilot from the cockpit was holding him. Now the situation was something like this. Very, very much tragic incident it took place. And we were shocked to see such an incident that happened in the British Airways. The aircraft investigation was done. Now, when this was done, it was coming out that the accident investigator investigated that the windows were refitted here and a night before and the wrong bolts had been used to secure it. So, and these
was actually replace the other with the incorrect ones, and the engineer who was working there was under pressure without the reference of manuals and simply replace the old bolt with the new ones with the like to like basis. जैसा कि यहाँ पे बोल्ट लगाए जाते हैं, तो बोल्ट लगाते वक्त उन्होंने ये नंबर का बोल्ट ये नंबर के जैसा दिख रहा है इसलिए वो लगा दिया, परंतु उन्होंने ये नहीं देखा कि वो एग्जैक्टली उसमें है या नहीं है। तो देयर वाज जस्ट ए कंफ्यूजन बिटवीन द सिंपल नंबर ऑफ द बोल्ट, और उन्होंने ये बोल्ट यहाँ पे लगाया, जिसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ। और ये जो विंड स्क्रीन थी ब्रिटिश एयर अभी सिक्योर्ड हो गई है, क्योंकि उन्होंने अब ये सब चीजें अंदर से लगाना शुरू कर दिया, जो कम प्रेशर वहां पे लाती है। परंतु ये जो त्रासदी थी, ये जो डिजास्टर था, बहुत हॉरिफाइंग था। कैप्टन जो था वो विंडो ब्रेक होने की वजह से बाहर आ गए थे और उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी बॉडी पकड़े हुए अंदर से दूसरे को पायलट्स थे। हॉरिफाइंग इंसिडेंट था, ब्लड ऊज हो रहा था पूरी तरह से। और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको छोड़ देना पड़ेगा, और उन्होंने वो छोड़ दिया बॉडी को। और फिर वो प्लेन आगे बढ़ाकर इनसे इनको हैट्स ऑफ कहना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि इन्होंने इतने पैसेंजर्स को क्रैश लैंडिंग के द्वारा बचाया। ये इंसिडेंट क्या सिखाते हैं? सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक। अब ये यहाँ पे जब हम कहते हैं कि विंड स्क्रीन जो है वो ब्रेक हो गई थी, तो अभी उसके काफी सारे कारण हो सकते हैं। इसमें एक कारण ये भी है कि विंड स्क्रीन जो थी वो अगर करेक्टली हीट नहीं हुई तो भी ब्रेक हो सकती है, या फिर एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिकली हीटेड विंडस्क्रीन जो है, विंडस्क्रीन टू सॉफ्टन द एक्रेलिक लेयर ऑफ द विंडो इन केस ऑफ बर्ड स्ट्राइक। जब बर्ड स्ट्राइक करती है तब भी एरोप्लेन में ये इंसिडेंट हो सकता है। और अगर स्क्रीन जो है वो अनइवनली हिट हो और या फिर उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए तब भी क्रैक होके शाटर हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये विंडो ब्रेक होने का खतरा रहता है। इस तरह से ये जो इंसिडेंट्स है ये हमें कुछ सीख देते हैं। ये यहाँ पे आपको स्लाइड में 3 प्रकार के फिगर्स दिए हुए हैं। ये जो फिगर्स है इसमें पहले केबिन के अंदर का जहाँ एयर प्रेशर जो है वो बाहर और अंदर ये दिखाया गया है। सेकेंड टाइम में जब कांस्टेंट रहता है और जब एयरक्राफ्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, टेक ऑफ करता है, तब की बात बताई गई है। और जो तीसरा फिगर है वो विंडो ब्रेक के बारे में बताया गया है, जिसमें जो जब पूरी तरह से प्लेन ऊपर जा चुका होता है तब हवा का जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो इस तरीके का प्रेशर उस पर डालता है। इस इन सब कारणों की वजह से जो विंड स्क्रीन है प्लेन्स के, वो ब्रेक होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अब ये जो 2 इंसिडेंट मैंने आपसे डिस्कस किए, ये आपको क्या बताते हैं? अब ये जो 2 इंसिडेंट थे, इससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, हमें कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए। चलिए, अभी एक और इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया। अभी रशिया में ये चेरनोबिल इंसिडेंट जो है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इंसिडेंट के बारे में, कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। और वो जो ब्लास्ट था, वो ब्लास्ट की वजह उसकी वजह खंगाली गई, उसकी वजह पता लगाया गया। अब उसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर जो था, ये यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। अब यहाँ पे 2-3 कारण बताए गए। जो उसमें कारण कहा गया, वो पहला कारण ये कहा गया कि ये जो crucial causes of the incident have large positive void coefficient which is possessed by the nuclear reactor. That is, it has a positive void coefficient. This means that increase in the voids or steam bubbles is associated with rise in the core of। इसका मतलब ये है कि जब
जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। जब स्टीम बनती है तब एयर बबल्स बनते हैं, वाटर बबल्स बनते हैं। तो बबल्स जो बनते हैं वो काफी सारे वहां पे स्टीम बबल्स होते हैं। तो वो जब राइज हो जाते हैं तो वहां पे प्रेशर भी बढ़ जाता है और वो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहती है। उस टाइम पे यहाँ पे ये डेवलप हो गया था। मोस्ट दूसरे जो रिएक्टर डिजाइन थी उसमें नेगेटिव कोएफिशिएंट की वजह से ये रिएक्टर रिस्पॉन्ड नहीं किया द फॉर्मेशन ऑफ द स्टीम बबल्स को, और इसमें हीट जो आउटपुट था वो कम होता गया। और इसके वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ कूलेंट कंटेन्स लॉट्स ऑफ स्टीम बबल्स, fewer neutrons were slowed down, and faster neutrons are in turn less likely to cause the fission of uranium atoms, thus resulting in a lower power output. This is an example of a negative feedback to prevent the reactor from heat output and reaching dangerously high levels. इस वजह से इसका ब्लास्ट हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा था। अब इसमें और भी कारण है, जिसमें जो रॉड्स थे वो भी छोटे पाए गए, और जो वहां पे इंजीनियर थे उनके तरफ से कुछ गलतियां हुई, जिसके वजह से रॉड्स की जो इंफॉर्मेशन थी उनको प्रॉपर नहीं थी। जो अपर पोर्शन रॉड थे वो पूरे एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए था न्यूट्रॉन्स को, बट वो स्लो डाउन हो गया और वहां पे ये जो रिएक्टर है ये ब्लास्ट की तरफ चला गया। ये जो इंसिडेंट है जो मैंने अभी आपसे कहे, इसके ऊपर गौर करने जैसे बात है कि क्यों ऐसा हुआ होगा, या ये इंसिडेंट है ये इसको कैसे रोका जा सकता था, इससे हमको सीख लेनी होगी। So all the things which are happening in the world is due to atoms, molecules, chemical and biochemical reactions. So my dear students, so my dear Saradites, be ready to explore the world of chemistry. Don't stop yourself in going, as it is very interesting to make the life of humans. Now, chemistry. Chemistry as such, there are many branches of chemistry, as it is shown in a tree where the branches, the roots basically of chemistry are divided under following categories. Now, I think all of you are graduating students. So, you know just few types of, or say few branches of chemistry, that is polymer chemistry, energy chemistry, quantum chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, biochemistry. All these are the roots of the chemistry. Now, these roots are further coming out in the form of stem and branches. Now, in the stem and branches, there are so many types, that is biotechnology, processing units, nanomaterials, microchemistry, environmental chemistry, computational chemistry, intelligent materials, superconductors. And using this, when we come into this, processing units, memory, sensors, display devices, chemical chips, catalysts, solar cells, fuel cells, and energy storage. All these are nothing but the applications of chemistry. And this huge application of chemistry, when you want to explore each and every branch of chemistry, you will go deeper and deeper and deeper, and you will reach to one particular stage. So, my dear students, when you are studying chemistry, or when you are loving chemistry, when you go into the deepness of chemistry, just think about first roots. Then after achieving to the root level, you go through one of the stem, and then after stem, you come to one of the branches, and after that, you work somewhere where you want to be, or where you can. Now, what are in every field, what one does in these? First, there are many fields in chemistry.
One is analytical chemist, second is pharmacologist, teacher, forensic scientist, geochemist. Now let's have a small look on it. The analytical chemist should have the skills and expertise to analyze the substances. That is, what component is present and what quantities are present in that substance and how does they behave. Now, this is a very huge and wide area. Now, when you want to consider as a medicine, then it comes to the drugs. Now, drugs, you may take the things in a positive way, that is a part of medicine, or you can have the another type of drugs which are taken in as a toxic. So now coming to the food, food also has to be analyzed, food products and this one. So these are how they are effective, the how analysis can be done for the food, drugs. आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट जैसा हम लोग फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि सॉस की बॉटल है तो सॉस की बॉटल के ऊपर एक एक्सपायरी डेट होती है जो हम देखते हैं, तो फूड एनालिस्ट ने उसका एनालिसिस किया हुआ है और वहां पर एक पर्टिकुलर टाइम तक, पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक वहां पे उसके अच्छे रहने की जो संभावना है उसके हिसाब से उसका ये होता है, एक्सपायरी डेट तय होता है और उसके बाद वो डाला जाता है. So this is very, very important as far as these industries are also concerned. Next is pharmacologist. It undertakes the development testing of drugs, that is medicines. Now analyzing these medicines and how they interact with the biological system. वो दवाई जो है वो अंदर जाके कैसे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ में रिएक्ट करती है, इसके ऊपर हमारा केमिस्ट्री स्टडी करता है. और इसके अलावा इट आल्सो इज एसेंशियल हाउ इफेक्टिव और सेफ है, ह्यूमन यूज के लिए वो सेफ है या नहीं है, ये देखने के लिए. अभी कोविड-19 में हम लोग सब इस पे रुके हुए हैं. मैं इसके बारे में एक थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी. It may involve the testing of the drugs on animals, human volunteers, and then ये जो फार्माकोलॉजी है ये रोल प्ले करता है लैब बेस्ड में, जो जिसमें इन्वॉल्व है नॉन स्टैंडर्ड आवर्स इन ऑर्डर टू मॉनिटर द ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट. एक्चुअली होता ऐसा है कि ये हम लोग जो मेडिसिन है या ड्रग्स जो है ये एनिमल्स पे अप्लाई करते हैं और फिर ह्यूमन वॉलंटियर्स. अभी ये हमारे सामने लाइव एग्जांपल है कोविड-19 में. पहले हाँ, इसमें फेज 1 में पहले वो एनिमल्स पे अप्लाई करके देखते हैं, फिर वो सेफ है नहीं है ये सब बातें, फिर उसके रूल्स जब फॉलो हो जाते हैं तो एनिमल्स पे जब वो ओके होता है तो फेज 1 ट्रायल होता है, फेज 1 ट्रायल होने के बाद फेज 2 ट्रायल्स होते हैं, फेज 2 ट्रायल होने के बाद वो आगे बढ़ता है. ऐसे एक ड्रग बनने के लिए पहले करीब करीब 5 से 12 साल लग जाते हैं. पर ये जो ड्रग बनाने की जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा यहाँ लोगों की कमी है, यहाँ बहुत बड़े रिसर्च की कमी है जिसके वजह से नए ड्रग्स जो है वो बन नहीं पा रहे हैं. हमको इस पे बहुत सोचने की जरूरत है क्योंकि पहले की जो स्थिति थी तब बीमारियां और पैथोजेंस जो थे धीरे धीरे उनकी जो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है उसको क्रॉस होते जा रहा है. हमको यहाँ पे इसको तोड़ना होगा. हमको ऐसे ड्रग्स, ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीजों की जरूरत है जो सेफली यूज किया जा सके बॉडी में, सो दैट हमारी इम्यूनिटी भी बनी रहे, हमारी प्रतिकार शक्ति भी बनी रहे और ये रहे. तो फार्माकोलॉजिस्ट एक बहुत बड़ा एरिया है केमिस्ट के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद. और केमिस्ट्री टीचर तो आप जानते ही हैं, हम आपके यहाँ केमिस्ट्री टीचर है तो आप अच्छी तरह जानते हैं इसको, जो आपका एक करिकुलम सेट करते हैं और फिर पढ़ाते हैं और आपके एग्जाम लेते हैं या जो आपको इवैल्यूएट करते हैं और फिर हम लोग को डिग्री मिलती है. उसके बाद आता है फोरेंसिक साइंटिस्ट. अब जैसे कोई भी अगर गुनाह हुआ हो या जैसे क्राइम सीन्स है तो क्राइम सीन्स के टाइम पे
वहां पे जो ब्लड पड़ा है या बॉडी फ्लूइड पड़ा है या हेयर पड़ा है या नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस है या पेंट है, पेंट से के जैसे भी माइन्यूट चीजों के बारे में अगर हम कहें तो ये जो है इसमें ये हो सकता है। तो यहाँ पर उसका हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, और ये करने वाला जो है केमिस्ट्री का जानकार होना चाहिए, जिसे हम फॉरेंसिक साइंटिस्ट के नाम से कहेंगे। और फिर वो ज्यूरी के सामने ये सब सबूत पेश होते हैं, और ये इसमें एक्सपर्टाइज होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंटिस्ट की, जो उसमें पूरे पार्ट को पूरी तरह से एनालाइज करके बताता है। उसके बाद आता है जियोकेमिस्ट। अब जियोकेमिस्ट कौन है? तो जियोकेमिस्ट स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ, पर्टिकुलरली रॉक्स और मिनरल। रॉक्स और मिनरल किस तरह से रहते हैं, और उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि इनका मेकअप कैसा है, रॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मिनरल कंपोनेंट कैसा है, और वहां पे वो कैसे इफेक्ट करेगा वहां की मिट्टी को, वाटर सिस्टम को कैसे इफेक्ट करेगा, वहां पे जो पानी होगा वो कैसा होगा, उसके अंदर कितना क्वांटिटी में कुछ अगर मिनरल्स या जो ये जाते हैं। तो बेसिकली अब इसमें ये करते क्या है, कैसे करते हैं हमें जियोकेमिस्ट, ये इस तरह से इट आइडेंटिफाइज द ऑयल ड्रिल साइट्स एंड इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी एंड डिटरमाइन हाउ बेस्ट टू रिमूव द हजारियस वेस्ट। अभी कोई हजारियस वेस्ट उसके अंदर है पानी के अंदर, और हम सोच रहे हैं कि उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो जियो केमिस्ट हमको सही तरीके से बता सकता है कि जो नियर बाई एरियाज है उसमें कौन कौन से रॉक्स है, मिनरल्स है, जो जिसका उसमें मिलान हो सकता है, चांसेस है उसमें एज अ टॉक्सिक ये दिखा रहा है, और फिर हम उसको रिमूव करने के लिए सोच सकते हैं। ऐसे जियो केमिस्ट काफी यूजफुल या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इनको इसमें देखना है। अभी एनालिटिकल केमिस्ट जो है, आप देख रहे हैं ये इंडियन फोटोग्राफी है। यहाँ पे एचपीएलसी के ऊपर काम किया जा रहा है। एनालिटिकल केमिस्ट है, एक लैब है जहाँ पे काफी सारे लोग मिलकर एक एनालिसिस कर रहे हैं। फार्माकोलॉजिस्ट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लीनलीनेस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और दवाइयाँ जो बनाई जा रही है और फिर बाद में उसके माइक्रो लेवल पे उसकी जांच हो रही है। फिर हम आते हैं टीचर की तरफ। टीचर आपको पूरे लैब में हेल्प करते हैं, वो आपका करिकुलम डिसाइड करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद हम आते हैं साइंटिस्ट, फोरेंसिक साइंटिस्ट। फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो, जैसे यहाँ पे शूज में लगे चीजों की जांच हो रही है, और माइक्रो लेवल पे ये जांच को ले जाया जा रहा है, और फिर वो ये रिपोर्ट जो है वो दे देते हैं, और फिर बाद में जूरी के सामने रखे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं जियोकेमिस्ट की तरफ। तो जियोकेमिस्ट सॉइल के अंदर होने वाले जो अर्थ के अंदर मिनरल्स और रॉक्स जो है उसको माइक्रो लेवल पे जांच करते हैं, और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, इसके बारे में बारीकी से जांच करते हैं, और फिर पता लगाते हैं कि वो वाटर पे इफेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वहाँ की बनावट कैसी है, उसमें क्या होता है, कौन से मेटल्स है नहीं है, ये सब के बारे में डिटेल में जांच होती है। अब हम लोग आते हैं अगले स्लाइड पर। अभी आगे और कौन कौन से टाइप के केमिस्ट्री है जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है, जैसे हजारियस वेस्ट केमिस्ट। हजारियस वेस्ट केमिस्ट, सोचिए सोचिए इसको, काफी सोचिए। हजारियस वेस्ट केमिस्ट जो है वो क्या सोचता है? ये इट डील्स विद सेफ रिलोकेशन ऑफ हजारियस मटेरियल। अभी जैसे हम लोग अभी बहुत सारे हजारियस केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो हजारियस केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। तो इसके लिए हजारियस वेस्ट केमिस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो पार्ट है इसमें हजारियस जो केमिकल्स है इसको हैंडल करने के लिए उसके कुछ प्रोटोकॉल्स है। जैसा कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में लैब सेफ्टी पढ़ा, तो लैब सेफ्टी में काफी सारे प्रिकॉशंस दिए गए हैं।
और जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने वाले जो लोग होते हैं, वहां पर जो सेफ्टी के जो रूल्स होते हैं, जहाँ पे बड़े जो ऐसे डेंजरस कुछ केमिकल्स है जिसको बनाना जरूरी है, जो रॉ मटेरियल्स की तरह से एक्ट करते हैं प्रोडक्शन लेवल में इंडस्ट्रीज में, और उनको बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी ये जो है, ये इनका क्या काम है, वो अपनी एक्सपर्टाइज यूज करते हैं। किस लिए? हार्मफुल केमिकल कंपोनेंट्स हवा में कौन से है, वाटर में कौन से है, सॉइल में कौन से है, मतलब डायरेक्टली पूरे एनवायरमेंट को डील कर रहे हैं ये लोग। और अभी एयर बोलेंगे तो एयर पोल्यूशन की बात आ गई, तो हवा में कौन कौन से ऐसे हजारियस कंपोनेंट्स है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर पीने का पानी जो है, या पानी जो इन जनरल जो नेचर में है, उसके अंदर कौन से हजारियस केमिकल्स है, उसके बारे में नॉलेज ये बताते हैं हमको। और सॉइल में कौन कौन से इम्प्योरिटीज है, या सॉइल में कौन कौन से हजारियस केमिकल्स मिक्स है। अभी कई बार ऐसा होता है कि कई सारे इंडस्ट्रीज है जो उनके उनके द्वारा निकलने वाले जो एफ्लुएंट्स है, वो डायरेक्टली एनवायरमेंट में छोड़ दिए जाते हैं। वैसा नहीं हो के उसको रिसाइकल करना, या वो एफ्लुएंट प्लांट होना, एफ्लुएंट को रिसाइकल करने वाला प्लांट होना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो है, वहां से निकलने वाले पानी के ऊपर जांच करना, ये हजारियस वेस्ट केमिस्ट बखूबी जानता है। और ये जो है, वो कैसा डेंजर क्रिएट करेगा, और फिर उसको रिमूवल कैसा करना चाहिए, और उसका कंटेनमेंट कैसा होगा, ये सब बताने में हजारियस केमिस्ट जो है वो सक्षम होता है। अब हम लोग आते हैं मटेरियल साइंटिस्ट पे। मटेरियल साइंटिस्ट, आपने अभी मिशन मंगल मूवी बहुत अच्छी तरह से देखी है, तो उसमें जो उनको बनाने वाला मटेरियल चाहिए होता है, तो मटेरियल के ऊपर काफी उन्होंने बताया हुआ है। आई होप यू रिमेम्बर। मटेरियल साइंटिस्ट जो है, वो मैन मेड सब्सटेंसेस और नेचुरल सब्सटेंसेस दोनों पर बात करता है। अब इसमें ये क्या करते हैं, ये जो है, उनके प्रॉपर्टीज, कंपोजिशंस, और वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और उसका इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ेगा। और वो क्या करता है, ये जो है, ये एनालाइज करता है कि ये कैसे एक्सपेरिमेंट होगा और कैसे एग्जिस्ट करेंगे, और ह्यूमन के नीड्स के लिए ये कैसे फायदेमंद होंगे मटेरियल्स। अब मटेरियल केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। मटेरियल, ये एक अकेला ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अभी एस्ट्रोनॉट केमिस्ट जो होते हैं, वहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल सूट्स होते हैं। हमारे यहाँ पुलिस है, तो पुलिस वाले को जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं, उसमें जो मटेरियल्स यूज होता है। हमारे यहाँ की जो आर्मी है, आर्मी के लिए जो यूनिफॉर्म चाहिए होता है, के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, मतलब जो इंडस्ट्री, जो एक एक प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन के लिए, वो प्रोफेशन के बंदों को कैसे सूट्स, कैसे कैसे टाइप के मटेरियल के इक्विपमेंट्स, या पीपीई जो हम बोल रहे हैं। अभी हमारे पास सिंपल, हमारे यहाँ सामने ही इतना बड़ा एग्जांपल है कोविड-19 का। हम लोग फेस पे मास्क होना चाहिए, डॉक्टर्स के फेस पे ये मास्क होना चाहिए, हमारे फेस पे ये मास्क होना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब मटेरियल्स की स्टडी है। तो ये केमिस्ट्री है जो कौन सा एटम, कौन सा मॉलिक्यूल कैसे जाके उसके साथ अटैक करेगा, कैसे उसके साथ रिएक्ट करेगा, और फिर उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो कैसे जाएगा और कैसे जाएगा, ये हम सोचते हैं। और सोचने के बाद हमको ये पता लगता है कि नहीं, ये सेफ नहीं है, ये सेफ है। इस वजह से वो मटेरियल आगे बढ़ता है, और उस पर हम आगे रिसर्च करते हैं। इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है। अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब टॉक्सिकोलॉजिस्ट क्या करता है? टॉक्सिकोलॉजी भी एक बहुत वाइड फील्ड है, जिसमें हम लोग कितना, कौन सी चीज कितनी टॉक्सिक है, कौन से लेवल पे वो लीथल है। लीथल यानी कि जैसे कौन सा डोज, हम जिसको लीथल डोज कहते हैं। अभी ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर हमने कई बार ऐसा न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ सुनी है कि भाई ये इतना, ये सुसाइड हुआ, ये पेस्टिसाइड लेके सुसाइड किया गया। तो अभी ये सब चीजें जो है, ये उसमें वो बॉटल के ऊपर लीथल डोज लिखा होता है ना। तो वो जो लीथल डोज है, वो अ, कौन तय करता है? टॉक्सिकोलॉजिस्ट। टॉक्सिकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये चीज, ये इतने डोज तक ये यहाँ पे डाली जानी चाहिए। इससे ज्यादा वो हो गई
तो ये नुकसान कारक है। तो टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो है ये दोनों तरीके से हमको हेल्पफुल होते हैं। टॉक्सिकोलॉजी भी एक बहुत अच्छा केमिस्ट्री है जिसको हमने एक्सप्लोर करना चाहिए, जहाँ पे हमको पता चलता है कि कौन सी चीज टॉक्सिक है और कौन सी चीज यूजफुल है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट इस पे, वाटर केमिस्ट पे। वाटर केमिस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि वो पानी की सफाई करता है, कंडीशंस देखता है पानी की, और ह्यूमन लाइफ को सही बनाए रखने के लिए अर्थ पर कैसे वाटर की जरूरत है। और ये काफी बहुत बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अब इसमें हम आते हैं पानी। पानी का इस्तेमाल कहाँ होता है? सपोज अभी एग्जांपल आपको बताऊं तो डाई इंडस्ट्री। अब डाई इंडस्ट्री जो है, अगर वाटर वहां पे जो रहा वो पहले से ही अगर प्योर नहीं रहा और उसके अंदर कुछ क्वांटिटी में छोटे छोटे कुछ दूसरे मेटल आइटम रहे, तो आप डाई बनाने जा रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर का एक कलर चाहिए। वो कलर के लिए सपोज आपको लेड आइटम्स चाहिए, टाइटेनियम एटम से, और आप आपके यहाँ पे वो वाटर गलत होने की वजह से उसमें सपोज कर लीजिए कि दूसरा कोई मेटल एटम इंट्रोड्यूस हो गया, दूसरा मेटल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो ऑफ कोर्स उसमें दूसरा कलर इम्पार्ट होगा। तो डाई इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ड्रग्स इंडस्ट्री, इनको बहुत हाई लेवल ऑफ प्योरिफाइड वाटर चाहिए होता है। तो इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम केमिस्ट्री में इसको भी एक डिटेल में सोच सकते हैं कि वाटर केमिस्ट जो है एक बहुत डीप एक ब्रांच है जहाँ पे हम पानी के बारे में सोच सकते हैं। पानी हमको हमारी ह्यूमन बीइंग के लाइफ के लिए कितनी प्यूरिटी चाहिए, उसमें कितना हार्डनेस होना चाहिए, उसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, ये सब बातों के लिए केमिस्ट का इसको एक्सप्लेन करता है और बताता है कि हम ये इस सब को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हम केमिस्ट्री में और क्या है? अब जैसे अभी आपको बताया हैजार्डियस वाटर केमिस्ट, हैजार्डियस वेस्ट केमिस्ट। अब ये जो है आपको यहाँ पे फोटो फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे न्यूक्लियर, ये वेस्ट का खतरे का साइन है और न्यूक्लियर वेस्ट है। अब न्यूक्लियर वेस्ट को हैंडल करने के लिए आप देखिए यहाँ पे जो केमिस्ट है वो पूरे पीपी किट पूरे पहने हुए हैं और फिर उसको हैंडल कर रहे हैं। तो इनको पता होता है कि हाउ टू हैंडल सच टाइप ऑफ हजार्डस केमिकल्स। फिर उसके बाद अभी मटेरियल जो है, अब ये जैसे इनका जो मटेरियल ये बना रहे हैं, तो ये बना जो मटेरियल बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, अब इसमें ये नीडल कितनी जा रही है, कितने डीप में जा रही है, कितनी जानी चाहिए, सब बातों का इनको नॉलेज होता है। अब हम टॉक्सिकोलॉजिस्ट पे तो ये डोज तय कर रहे हैं ये लोग, और इनका काम होता है कि कंपोनेंट को एनालाइज करे और कितनी मात्रा में ये टॉक्सिक हो सकता है। फिर हम आते हैं वाटर केमिस्ट पे। वाटर केमिस्ट जो है वो एक जगह का वाटर लेकर फिर उसको एनी टाइम ये वाटर लेकर जो यहाँ पे वाटर का ये तय करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि वाटर कैसा है। और फिर हम उस पे आते हैं कि केमिकल हेल्थ और सेफ्टी। अब ये जो है बहुत आगे चल के यहाँ पे स्कोप रहने रहेगा आपको, और आप इसके बारे में एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। सर केमिकल हेल्थ और सेफ्टी, अभी कोविड-19 की बात ही ले लीजिए। कोविड-19 में सब लोग सफर कर रहे हैं, घर पे लॉकडाउन है, ठीक है। अब हम सफर वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम कुछ और नई चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। अभी माना कि हम लोग कोविड-19 से ग्रस्त है और हम लोगों ने सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू किया। अब सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। साबुन का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी बात है। का इस्तेमाल इतनी बड़ी पॉपुलेशन यूज करेगी, तो कैन यू थिंक कि साबुन की मात्रा पानी में कितनी बढ़ जाएगी? उसके ऊपर सोचा जाना चाहिए। अब ये व्यक्ति जो है जिसे हम कहेंगे वाटर केमिस्ट, इसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है ये। तो वाटर केमिस्ट के लिए उसको फिर प्यूरिफाई करना होता है, तो ये सब चीजों को प्यूरिफाई करने के लिए फिर उनके पास बात बनेगी। अब सैनिटाइजर की बात करेंगे तो उसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल अगर बहुत एक्सेस में जब यूज होगा, बहुत एक्सेस में जब स्प्रे होगा पूरे एनवायरमेंट में, तो ऑफ कोर्स एयर में उतनी मात्रा में अल्कोहल का कंटेंट बढ़ेगा।
अल्कोहल का कंटेंट बढ़ेगा तो अगेन जो एयर की जो ब्रीदिंग एयर जो है उसका कंडीशन और ये कंडीशन वेरी करेगा और उस पे फिर डिफरेंस आएगा। तो मैं केमिस्ट्री की पर्सन हूँ और भी केमिस्ट्री जानते हैं, लेकिन हमें हाँ वी डोंट हेट केमिस्ट्री, वी डोंट हेट केमिकल्स, बट केमिकल्स के साथ में कैसे जीना चाहिए ये तो हमें तय करना है। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में, टॉक्सिकोलॉजिस्ट इसीलिए ये नाम आया है, एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री। ये मैं बार बार आपको ये बात बताऊंगी कि केमिस्ट्री को आप एक्सप्लोर करिए कि कौन सी चीज कैसे डिटेल में हमको देखनी चाहिए, किसमें हम लोग क्या क्या प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं। अब ये वाला देखिए, केमिकल हाइजीन ऑफिसर क्या क्या सोच सकता है, केमिकल का हाइजीन। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, केमिकल हाइजीन ऑफिसर आपको फोटो दिखाया गया है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके वो एक एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं, कौन कौन से केमिकल्स एक्सेस मात्रा में है या नहीं है इसको, और कौन से जगह पे सफाई होनी चाहिए पर नहीं है, वो भी जरूरी है। दवाई बनाने वाली जगह वहाँ पे ह्यूमन बीइंग की मेडिसिन बनाई जा रही है और वहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है, वहीं पे फंगस है, वायरस है, तो फिर वो भी सही नहीं है। तो ये सब चीज़ों की बहुत बारीकी से जान जान करना ये केमिकल ऑफिसर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसे हम लोग क्वालिटी, और उसके बाद जो चीजें बनती है, दवाइयाँ बनती है, जो भी बनता है, तो इसे कौन रेगुलेट करता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। फिर वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उसको बोलता है कि ये सही है और फिर आगे बढ़ती है मार्केट की तरफ चीजें जाती है। अब हम लोग आगे आएंगे, आपने केमिस्ट्री में कितनी सारी चीजें वर्कआउट कर ली, कितने सारे ब्रांचेस इधर वर्कआउट कर लिए। जैसा कि अभी हमने ये वाले फोटो में देखा तो एनालिटिकल केमिस्ट देखा, केमिस्ट्री टीचर देखा, फोरेंसिक साइंस में देखा हमने, फार्माकोलॉजिस्ट देखा हमने, जियो केमिस्ट देखा। अब इस फोटो की बात करते हैं तो हमने हजारियस वेस्ट केमिस्ट देखा, वाटर केमिस्ट, साइंटिस्ट देखा, टॉक्सिकोलॉजिस्ट देखा और केमिकल हेल्थ सेफ्टी देखा, वाटर केमिस्ट देखा। अब इस स्लाइड में जब मैं बात करती हूँ मटेरियल साइंटिस्ट की, ये वाले स्लाइड में जब मैं मटेरियल साइंटिस्ट की बात करती हूँ तो ये एक छोटा ब्रांच नहीं है, बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें मटेरियल्स के बारे में बखूबी दिखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में बताया था, एरोप्लेन के सूट्स के बारे में बताया था, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से इस्तेमाल होने वाले जो पीपीई है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। उसमें हम लोग फायर फाइटर्स है जो फायर को रोकने वाली जो सूट्स है उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो मैं बता रही हूँ आपको कि मटेरियल अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांच है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और अलग अलग टाइप है। तो मैंने क्या कहा कि हम अभी कहाँ हैं, हम तो अभी उस पेड़ पर हैं जहाँ पे कुछ रूट्स है और उस रूट्स में हमको कुछ ही प्रकार की केमिस्ट्री पता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक शायद अगले साल आपको कुछ और पता चल जाए तो बहुत हुआ, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक एक्स्ट्रा पता चलेगी। लेकिन जब हम इसको और डिटेल में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आएंगे तो आपको कुछ फर्टिलाइजर्स के बारे में बात होगी, कुछ पेंट्स के बारे में बात होगी, तो कुछ आपको और भी जो ड्रग्स के बारे में बात होगी, फार्माकोलॉजी के बारे में फिर से बात होगी। तो जितनी इंडस्ट्रीज है, रबर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो अब थोड़ी देर के लिए अभी आप एक एक 2 मिनट के लिए थॉट दीजिए कि कितने टाइप के यहाँ पर कितने टाइप के इंडस्ट्रीज है। अभी हम तो एक के नाम अगर है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों की बात आती है, फिर मटेरियल केमिस्ट्री की बात आती है, फार्मा इंडस्ट्री में दवाई आती है तो उसकी बात आती है, ड्रग्स की बात आती है, ड्रग्स की बात आती है, मेडिसिन की बात आती है, मेडिसिन आ गया तो मॉलिक्यूल आ गया, मॉलिक्यूल आया तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म आ गया, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में तो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट आ गया। तो ये हो गई टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर आ गई दिस वन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टायर्स हो गए, टायर्स में रबर इंडस्ट्री हो गई, रबर के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। फिर आ गई पेंट इंडस्ट्री, फिर आप आ जाइए उसमें
सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट में जो है पूरा जो कंक्रीट जंगल अभी हम देख रहे हैं, तो सीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज बिल्डिंग्स आर कंसर्न। और फिर इन सब ये जो अभी हम लोग बच्चों, सिर्फ स्टूडेंट्स हम लोग ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये पेड़ की खाली रूट्स में है। अभी हमको तो और आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत बड़ा सफर तय करना है। अभी तो यहाँ स्टेम बाकी है और यहाँ की ब्रांचेस हमारा इंतजार कर रही है। इसमें एक छोटा सा यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको सेंसर्स। अभी सेंसर्स, अभी आप याद करिए कि जैसे घर में कहीं आग लग जाए तो धुआं उठता है, और धुआं उठता है तो एक सेंसर्स के द्वारा एक सायरन बजता है। तो जो सेंसर्स होते हैं वो तो मैंने अभी आपको कॉमन एग्जांपल बताया, ऐसे सेंसर्स बहुत सारे सेंसर्स है। तो और भी प्रकार के सेंसर्स जिसे हम बायो सेंसर्स भी कहते हैं, वो भी एनालिटिक्स दौरान आगे खुलते हैं। तो ऐसे केमिस्ट्री के वर्ल्ड को अगर आप एक्सप्लोर करने जाएंगे, अभी मैंने जैसा आपको बताया टेक्सटाइल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है जो सारी के सारी केमिस्ट्री के बेसिस पे काम करती हैं। केमिस्ट्री के नॉलेज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उसके रिएक्शंस के बलबूते पर आगे बढ़ती है। इसीलिए इन इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा और सोचते हैं। अरे हाँ, अरे हमको तो रोज ये सब चीजों की तो बहुत आदत है, परफ्यूम के बगैर तो हमको चलता नहीं है। तो ये जो है कॉस्मेटिक केमिस्ट है जो हमको बताता है, या सनस्क्रीन लोशंस हो गए जो हमको सन के इफेक्ट से बचाता है, तो ये कॉस्मेटिक केमिस्ट हो गए। फिर हम आते हैं सिंथेटिक केमिस्ट पे। सिंथेटिक केमिस्ट तो आए दिन कितने सारे केमिकल्स जो इस्तेमाल होते हैं, तो वो जो लैब्स में बनते हैं, कुछ कम मात्रा में इस्तेमाल होते हैं तो कुछ ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। ये रॉ मटेरियल बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अब आप आ जाइए एस्ट्रोनॉट केमिस्ट में, तो ये एस्ट्रोनॉट केमिस्ट देखने से ही पूरी बात समझ में आ रही है। मिशन मंगल याद आ रहा है ये सब देखकर कि यहाँ पे जितना भी सेटअप है, सेटअप में यहाँ पे इन्होंने जिस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट्स पूरे यूज किए हुए हैं, या यहाँ ये लोग कौन से वहाँ पे जो लगने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है, जो ऊपर स्पेस में जो मटेरियल्स यूज होंगे, उसके बारे में पूरी बारीकी से ये लोग जांच कर रहे हैं। फिर हम आते हैं मराइन केमिस्ट पे। तो अभी ये जो मराइन केमिस्ट है, ये यहाँ पे ये वाला जो स्पेसिफिक फोटोग्राफ है, मराइन केमिस्ट का काम होता है कि समुद्र के अंदर, अभी आपको एक छोटा सा फिर से एग्जांपल याद दिलाती हूँ कि जापान में फुकुशिमा में अभी फ्लड आया था और न्यूक्लियर रिएक्टर का वहां पे भी ब्लास्ट हुआ था। न्यूक्लियर रिएक्टर का जब ब्लास्ट हुआ था तो न्यूक्लियर जो वेस्ट है वो कितनी मात्रा में समुद्र में गया, उसे हम कहेंगे मराइन। समुद्र है ना, मराइन। तो मराइन जो है ये शब्द इसको रिलेट करता है। तो जो मराइन केमिस्ट होता है वहाँ वहाँ के पर्टिकुलर केमिकल्स के बारे में पूरी पूरी जानकारी रखता है। हाँ, रेडियो एक्टिव कुछ केमिकल्स तो नहीं गए हैं, या फिर कई बार शिप रेक हो जाती है, जैसे टाइटैनिक की बात कही मैंने। तो टाइटैनिक तो कितना फ्यूल पानी में मिला होगा, कितना टॉक्सिक वो पानी रहा होगा। पानी टॉक्सिक अगर रहेगा तो फिशेस और वहाँ के लाइफ, उनकी एक्वेटिक लाइफ हैम्पर होंगे। तो ये सब बातों का नॉलेज मराइन केमिस्ट देते हैं, और उनको वो रहते हैं वहां पे, और उनको ये देना होता है, ये जानकारी देना होता है, सो दैट हम पूरा बैलेंस मेंटेन कर सके ये इसके साथ। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाँ यस, ये इंडिया में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी ये जो है एग्रीकल्चरल केमिस्ट, ठीक है। अभी फॉरेन के लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, अभी हम उस पर नहीं चलेंगे। अभी हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। तो इसमें यहाँ पे हम जो कौन से खाद इस्तेमाल हो रहे, विच फर्टिलाइजर इज यूज्ड इन द सॉइल एंड वेदर दैट फर्टिलाइजर इज टॉक्सिक for the plant or not, how much dose is to be given to the soil, how much weedicide is to be put in the soil,
what pesticide is to be put in the soil or say sprayed in the plants, ये सब बताने वाला होता है एग्रीकल्चर केमिस्ट। इसको मालूम होता है कि कौन सा केमिकल कितना डोज में अप्लाई किया जाए तो हेल्पफुल है, और ज्यादा सोचा जाए और इस डायरेक्शन में ना सोचा जाए कि कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाए। बेटर हम इस डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना चाहिए केमिस्ट्री को कि कौन कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कौन दो फर्टिलाइजर हम केमिस्ट बना सकते हैं, एग्रीकल्चरल केमिस्ट, जो कौन से ऐसे केमिकल्स है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी, उर्वरा शक्ति बनी रहे और सॉइल जो है अपने आप में बहुत अच्छा रिच कंटेंट बना रहे और हमारे जो खेती की पैदावार है वो अच्छी हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अब इसमें अभी मैं एज अ केमिस्ट अगर मैं इतनी सारी ब्रांचेस एक्सप्लोर कर ली हूँ तो फिर ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं क्या बनती हूँ? तो आई कैन बी अ डेवलपर, आई कैन बी अ ग्रुप लीडर, मैं कोई इन्वेस्टिगेटर हो सकती हूँ, मैं कोई मैनेजर हो सकती हूँ, कोई लैब की मैनेजर हो सकती हूँ, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकती हूँ, किसी कंपनी की प्रेसिडेंट हो सकती हूँ, कोई सीईओ हो सकती हूँ, और फिर रिसर्च साइंटिस्ट हो सकती हूँ, कोई सीनियर साइंटिस्ट भी बनते हैं, कुछ जो जेआरएफ होते हैं, और कई बार केमिकल इंडस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंट होती है। और एक और यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन पे जैसे कहूँ तो जैसे ऐसा होता है कि जैसे कोई भी फर्टिलाइजर हो या कोई भी दवाई हो या कोई भी डाई हो या कोई भी मटेरियल आप ले लो जो मार्केट में जा रहा है या बिक रहा है, वो रॉ मटेरियल्स एक बार कंपनी के पास आते हैं, उसका एक एक स्पेसिफिक मात्रा में उसकी एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले में थोड़े-थोड़े मात्रा में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वो मिक्स किए जाते हैं और मिक्स होने के बाद वो बनता है। तो वो उसका एक बनाने का एक प्रोसीजर होता है, एक फॉर्मूला होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज़ फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को दवाई, फॉर एग्जाम्पल अभी दवाई को मार्केट में जाना होता है तो वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो उसकी पैकिंग कैसे होनी चाहिए, वो कैसा फॉर्मूला रहेगा तो वो मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा, तो उसमें क्या ऐसा डाला जाएगा जिसकी वजह से वो फॉर्मूला फिट बैठेगा। तो ये जो फॉर्मूला वाली बात है वो इन ये लोग उसको एक्सप्लोर करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं, टेक्निकल सपोर्ट मैनेजर होता है जो आपको, जैसे कई बार एक कोई चीज है जो बन रही है, इंजीनियर ने प्लांट लगा दिया और फिर चीजें जा रही है, बन रही है, पर जो बनते-बनते वो बिगड़ जा रही है, सडनली वो खराब हो रही है। तो कौन-सी चीज़ या कौन-सी वस्तु, मटेरियल बिगड़ रही है, ये बताने के लिए वहाँ पे केमिस्ट इंजीनियर के साथ साथ खड़ा होना चाहिए। तब ये चीज़ें एक्सप्लोर, इंजीनियर का काम है चीज़ कोई भी प्लांट को खड़ा करना, उसकी प्रोसेस को समझना, उसके अंदर जो मटेरियल डाला जा रहा है, मटेरियल को समझने वाली बात जो है, वो केमिस्ट्री बताता है, केमिस्ट्री एक्सप्लोर करता है। उसके बाद केमिकल इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट जो है, ये कैसा ऑफिसर जो है वो मैं बन सकती हूँ, प्रोसेस मैनेजर और केमिकल इंडस्ट्री। और आज अब जो भी करो, जो भी मैंने किया, ठीक है? अगर कोई केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी लगती है, केमिस्ट्री से जीना चाहते हो, तो केमिस्ट्री को पैशन की तरह जियो। और अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ अगर मुझे लेनी है और अगर उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो आप में कुछ तो खूबियाँ होनी चाहिए। और वो कौन-सी खूबियाँ होनी चाहिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, आपको ये ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, वो रहा है नहीं तो वो रहा तो क्या होगा? ये सब आपके दिमाग में जब प्रश्न उठते रहेंगे, तब आप बहुत अच्छी तरह से उस पे सोच पाएँगे। आपके डिसीज़न्स सही जाने चाहिए, क्योंकि आपको मैंने त्रासदी बताई, अभी बहुत बड़ी-बड़ी त्रासदी बताई। टाइटैनिक जैसा जहाज़ डूब गया और उसमें सल्फर जो ग्रेन बाउंड्रीज़ बताया, तो वो जो त्रासदी है, तो ये सारी बातें हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, रिसर्च, प्रेज़ेंटेशन स्किल आप में होने चाहिए, डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए।
अभी हम लोग केमिस्ट्री लैब में टेस्ट करते हैं तो कौन सा कलर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या बन रहा है, तो वो टेस्ट दिख रहा है। ये सब बातें हम लोग उस पे हमने डिटेल में सोचना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट तो जरूरी है ही है। उसके अलावा हमने जो डेटा या हमने जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो रीडिंग्स लिख रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रख के आना चाहिए। हमारा टीम वर्क भी बहुत जरूरी है। एक जगह आग लग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी जगह से काम ही ऐसा बिगड़ पड़ा कि बात नहीं बनी। तो टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। और फिर अगर करियर केमिस्ट्री में करना चाहते हो, साइंस सेक्टर में लेना चाहते हो, तो हमेशा शुरू में इंटर्नशिप हमारी होनी चाहिए। तो कुछ इंटर्नशिप है जो कभी पेड होती है तो कभी अनपेड होती है, कभी फ्रेशर्स के लिए इंटर्न चाहिए होता है। तो ये सब आगे की बातें हैं जो आप और एक्सप्लोर करने में आपको मदद करेगी केमिस्ट्री को, और आपको केमिस्ट्री के और नजदीक लाएगी, और फिर आपको समझ में आएगा कि ये चीज कैसे आगे बढ़ती है। और अब लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगी कि आप अभी घर कोविड-19 के चलते घर पर है। घर पर है तो अपना समय जो है वो थोड़ा समय प्लांटेशन को जरूर दीजिए। मेरे मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग पेड़ लगाइए। और ये जो हवा जो आगे चल के इम्प्योर हो रही है, सॉइल वाटर, ये इम्प्योर होने के जो डर है, ये सब का रास्ता, सबके रूट्स, सबका रास्ता एक ही जगह से खुलता है, वो है अफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटेशन। और थैंक यू सो मच। And I would like to thank Principal Sir, Vice Principal, teacher Aparna Madam, and my dear students and my dear friends for listening to me with attention, and all the best in the near future. And last but not the least, just go with the just I'm having one channel. If you want to explore chemistry with few more ideas, then watch Chemistry Unplugged Dutch. Like it, share it, subscribe it. Thank you so much. Thank you so much for watching me here, for exploring chemistry in future. Thank you so much.